Hey everyone, in this particular video we are going to discuss about inflation, one of the most important terminology if you are giving the examination of RBI grade B. So let's start the discussion. So we say that inflation is a persistent price level increase, right? कि एक persistent increase आ रहा है आपकी price level में, एक general increase आ रहा है, ना कि specific inflation, right? ना कि specific increase किसी particular commodity में. So सबसे पहली चीज तो हम इसको क्या बोलते हैं, देखो, we call it as a general increase in the price level, right? So generally सारी goods and services की जो कि market के अंदर है उनकी prices increase हो रही है in the market, right? Not just a specific one. So whenever a price of a specific commodity moves like this, there are so many ups and downs. We call it as volatility and not inflation. We call it as volatility. किसी particular चीज की price एकदम से बढ़ गई, फिर एकदम से कम हो गई, फिर कंसोलिडेट कर रही है, फिर एकदम से बढ़ गई, फिर कम हो गई. दिस इज मेयर वोलाटिलिटी, राइट? वी कॉल इट एज वोलाटिलिटी एंड नॉट इन्फ्लेशन. When we particularly talk about inflation, it is nothing but general increase in the price level over the period of time and which reduces your currency purchasing power. So if I talk about this cup of tea, you can earlier buy it for 2 rupees, then 5 rupees and now 10 rupees. So can I say that this is a kind of inflation? It's not just with tea. It's with coffee, it's with cold drink, it's with any other beverage also, right? So it's a general increase in the price level over the period of time. And because of this, your purchasing power of the currency is going down, right? आपकी currency की purchasing power कम होती है. अच्छा, currency हमने concept of money पढ़ा था. In the money वाला video, we have learned the concept of money. What is the difference between currency and money? उसमें हमने पढ़ा था कि money की value is a kind of store, right? मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. आपकी मनी की जो वैल्यू रहेगी वो प्रोटेक्टेड रहेगी फ्रॉम इन्फ्लेशन, बट आपकी करेंसी की वैल्यू प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी. एंड वी हैव टेकन अ सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल. वी डिस्कस्ड अबाउट this promissory note. This is a currency which is a kind of promissory note. This is not real money, right? Here we can see I promise to pay the bearer the sum of 500 rupee note. So the value will always be fixed. 500 rupee, definitely. The denomination of this note will be fixed, but the value, the purchasing power will keep on going down. You can't buy the same cup of coffee which you used to buy with this 500 rupee note 5 साल पहले, right? 5 साल पहले जो आप कप ऑफ कॉफी खरीदते थे किसी स्टारबक्स के शोरूम पे या किसी भी कैफे के अंदर, तो वो आज आप वापस नहीं खरीद सकते इससे, और आने वाले 5-10 साल बाद ये 500 रुपी नोट से आप और कम खरीद पाओगे. एंड व्हाई दिस थिंग हैपेंस? Because this is a kind of currency which is subject to loss in the value over the period of time. इसकी purchasing power हमेशा कम होगी. Money is a store of value. Gold, silver, store of value. But when we talk about this paper currency, it is merely a currency which is a promissory note, और इसकी purchasing power कम होनी है. अच्छा, क्यों कम होनी है? Because of inflation. Because of the concept of inflation. जब हम इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ा देते हैं तो इन्फ्लेशन आ जाता है. मनी सप्लाई बढ़ाने की वजह से, इन्फ्लेशन आने की वजह से इसकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है. इसकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है. एंड दिस थिंग वी कैन सी इन द डेफिनेशन इटसेल्फ. इट्स अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रिड्यूसिंग द करेंसीज परचेसिंग पावर, राइट? ये हमको बताता है हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है. किसी एक कंट्री में, किसी एक पर्टिकुलर सिटी में रहने की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, हर साल कितने अमाउंट से बढ़ रही है, कितने परसेंटेज से बढ़ रही है, right? And it is applicable to most of the goods. So I already told you किसी एक particular goods के ऊपर नहीं, general price increase है, right? General price increase है and we measure it on a point to point basis, right? So ये हमेशा year on year measure होता है. ये हमेशा year on year measure होता है, right? Now there are so many types of inflation based on the causes, based on speed, based on rest of the other categories also. But in this particular video, we are going to discuss about demand pull inflation. We'll be also discussing about the cost push inflation. अच्छा, we all know the concept of demand and supply in economics. किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, उसकी सप्लाई कम आ रही है, पर डिमांड बहुत ज्यादा है. से फॉर एग्जांपल सिल्वर, इट्स अ काइंड ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. द डिमांड इज एक्चुअली पुलिंग अप द इन्फ्लेशन, राइट? लोग 100 रुपए की जगह 150 रुपए देने के लिए तैयार है, 200 रुपए देने के लिए तैयार है. सो डिमांड बहुत जबरदस्त आ रही है एज कंपेयर टू द सप्लाई. सो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, प्राइसेस इंक्रीज हो रही है. व्हाई? बिकॉज डिमांड इज इंक्रीजिंग एंड द सप्लाई इज सो लिमिटेड दैट वी आर नॉट एबल टू केटर द डिमांड.
So this is called as demand pull inflation. The demand is actually pulling the inflation up, right? So the overall demand of the goods and services is actually exceeding the supply of it, and this is actually driving the prices higher, right? ये होता है हमारा demand pull inflation. When I talk about cost push inflation, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझना. Let's suppose हम एक पेन बना रहे थे. अब इस पेन को बनाने के लिए पहले मटीरियल लगता था 5 रुपए का, लेबर लगती थी 3 रुपीज़ की, राइट? तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाती थी? 8 रुपीज़ हमारी कॉस्ट हो जाती थी. उसके अंदर से हमारा प्रॉफिट होता था 2 रुपीज़, एंड वी वर सेलिंग दिस पेन at 10 rupees. This was my selling price of this particular pen, right? अब cost push inflation की वजह से material का price बढ़ गया. Earlier I used to arrange this material for 5 rupees. Now I am able to arrange this material for 8 rupees, right? So can I say that there is 3 rupees increase in the prices of the material, right? Labor cost is still same, 3 rupees. So 11 रुपी कॉस्ट आ गई. मैं अभी भी प्रॉफिट 2 रुपये कमा रहा हूँ. आई एम जस्ट अर्निंग 2 रुपीज़ ओनली प्रॉफिटेबिलिटी, राइट? माई प्रॉफिटेबिलिटी इज जस्ट 2 रुपीज़ ओनली पर यूनिट ऑफ पेन. बट द कॉस्ट इज पुशिंग द इन्फ्लेशन. मुझे प्राइसेस बढ़ानी पड़ गई. फ्रॉम 10 रुपी आई हैव टू इंक्रीज द प्राइसेस टू 13 रुपी. वाई? बिकॉज द कॉस्ट इज पुशिंग द इन्फ्लेशन. सो वेन वी वर टॉकिंग अबाउट द डिमांड वॉज एक्चुअली पुलिंग द इन्फ्लेशन, बट हियर द कॉस्ट इज पुशिंग द इन्फ्लेशन, राइट? सो दैट्स वॉट द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज ऑल अबाउट, right? That's what the cost push inflation is all about, and it can be because of increase in the raw material prices, or it can be because of the wage hike. People are demanding more and more money, right? Or any other matter with your cost of production. If there is any increase in your cost of production, definitely it will push your inflation up, and that's what we call it as cost push inflation. सही है? तो अभी तक वी डिस्कस्ड अबाउट इन्फ्लेशन की इन्फ्लेशन क्या होता है. तो एक परसिस्टेंट इंक्रीज होता है, एक जनरल इंक्रीज होता है प्राइस लेवल में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिससे आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है. देन वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. द डिमांड इज एक्चुअली पुलिंग अप द इन्फ्लेशन. वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. हम कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, उस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ना कि किसी और वजह से. हमारे पास एक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी होता है, राइट? हमारी इकोनॉमी में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. से फॉर एग्जाम्पल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये स्ट्रक्चरल कॉस्ट की वजह से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है. देन वी हैव वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ कोर इन्फ्लेशन प्लस हेडलाइन इन्फ्लेशन, राइट? कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन. हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है टोटल इन्फ्लेशन, राइट? जिसको हम CPI भी बोलते हैं. मतलब उसमें फूड, फ्यूल एक्सपेंस सब कुछ इंक्लूड हो गया. फूड और फ्यूल का इन्फ्लेशन भी इंक्लूड हो गया, राइट? अब द प्रॉब्लम विथ फूड एंड फ्यूल इज these items are having a huge amount of volatility, right? So these items are having a huge amount of volatility. So if I talk about headline inflation, you can see headline inflation moving like this. It can happen, right? Whenever there is a high volatility, it can happen. कभी बहुत ऊपर हो रहा है, कभी बहुत नीचे जा रहा है. Why? Because of food and fuel, right? जो आपकी गैस प्राइसेस होती है, क्रूड ऑयल प्राइसेस होती है, और जो फूड इन्फ्लेशन होता है इंडिया के अंदर, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. वाई? बिकॉज दीज थिंग्स आर हाईली डिपेंडेंट ऑन दी जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स. अगर जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही है, कोई भी रिस्क चल रहा है, तो डेफिनेटली इसके अंदर वोलेटिलिटी आ सकती है. इसमें वोलेटिलिटी आई तो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो सकता है, राइट? काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट कोर इन्फ्लेशन, इट्स नॉट दैट मच वॉलेटाइल. इट्स नॉट हैविंग दैट मच वोलेटिलिटी. वाई? बिकॉज it is excluding the volatile items like food and fuel, right? So it shows you the long term trend removing the volatility. तो ये volatility को इग्नोर कर देता है कि यार फूड और फ्यूल के इन्फ्लेशन को रहने दो, और उसके अलावा जितने भी आइटम्स हैं उनको कंसिडर कर लो, ताकि एक कोर इन्फ्लेशन हमको पता चले, राइट? अच्छा, RBI इज यूजिंग अ फिट फ्रेमवर्क, राइट? फिट फ्रेमवर्क. तो इकोनॉमी को अगर फिट रहना है तो उसको ये फिट फ्रेमवर्क फॉलो करना पड़ेगा. एंड दिस फिट फ्रेमवर्क रिलेट्स टू इन्फ्लेशन ओनली. द फुल फॉर्म इज फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, राइट? FIT, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग. तो RBI बोलता है कि इन्फ्लेशन को एक रेंज में लाने की कोशिश करो. क्या करो? एक रेंज में लाने की कोशिश करो. क्यों करो सर? एग्जैक्ट क्यों नहीं हो सकता? वाई वी नीड अ रेंज? देखो यार, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी होना एक बढ़िया इकोनॉमी का साइन है, ठीक है? कोई भी रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए लाइफ में. वैसे इकोनॉमी में भी नहीं होनी चाहिए कि हमको तो 4% ही चाहिए, हमको तो 2% ही चाहिए, हमको 6% ही चाहिए. जहां पे भी रिजिडनेस आ गई, वहां पे प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाती है. एंड
वी डू हैव अ फिट फ्रेमवर्क एंड आरबीआई इज फ्लेक्सिबल इनफ। आरबीआई बोलते हैं कि आप 4% प्लस माइनस 2% का टारगेट लेके चलो। कहने का मतलब योर इन्फ्लेशन कैन बी एनीवेयर अराउंड 2% to 6%, कैन बी इन दिस पर्टिकुलर रेंज। 2% to 6%, 4% का टारगेट रखो, प्लस माइनस 2%, 2% ऊपर नीचे हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा आरबीआई कहते हैं, राइट। सो करंट टारगेट क्या है? 2 to 6% का बैंड हमको फॉलो करना है इन दी फिट फ्रेमवर्क। व्हाट इज फिट फ्रेमवर्क? फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। अब आरबीआई फिट फ्रेमवर्क के अंदर लाने की कोशिश कैसे करता है इन्फ्लेशन रेट को? बहुत सारे टूल्स होते हैं, रेपो रेट होती है और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हम आने वाले टाइम में समझेंगे, और कुछ चीजें हमने पुराने वीडियोस के अंदर भी डिस्कस करी है, राइट। उसके बाद कॉन्सेप्ट होता है सीपीआई डब्ल्यूपीआई का। हालांकि अगले आने वाले वीडियो के अंदर डेफिनेटली आई विल बी टेकिंग ऑल दीज थिंग्स इन अ डिटेल्ड मैनर, बट सीपीआई आपको बताऊं मेरे और आपके लेवल पे, यानी कि कंज्यूमर्स के लेवल पे, रिटेलर्स के लेवल पे मेजर किया जाने वाला इन्फ्लेशन है, क्योंकि हम लोगों का इन्फ्लेशन अलग होगा एज कंपेयर टू द होलसेलर्स का इन्फ्लेशन, राइट। जिससे मैं ये पेन खरीद के लेके आता हूं, मैं तो एक शॉपकीपर हूं, जिससे मैं पेन होलसेल रेट पे खरीद के लेके आता हूं, उसका इन्फ्लेशन अलग चलता होगा, मेरा इन्फ्लेशन अलग चलता होगा, आप लोगों का इन्फ्लेशन मेरे साथ चलता होगा। वी आर रिटेलर्स, राइट। So that's why we do have consumer price index. We do have CPI, consumer price index, but the wholesalers do have wholesale price index, right? So business to business sales हो रही है, मान लो अंबानी साहब, अडानी साहब को कुछ बेच रहे हैं, WPI से मेजर हो जाता होगा। कॉर्पोरेट एंटिटीज एक दूसरे को कुछ बेच रही है, WPI से मेजर हो जाता होगा। बट कंज्यूमर्स, एंड कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं, मैंने ये पेन खरीदा मेरे चलाने के लिए, आप लोगों ने ये पेन खरीदा आपके चलाने के लिए, ये सीपीआई से मेजर होता है, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। डब्ल्यूपीआई मींस होलसेल प्राइस इंडेक्स, राइट। सो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा अभी लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा के हिसाब से सीपीआई कितना चल रहा है, डब्ल्यूपीआई कितना चल रहा है, और क्या हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच हम फिट फ्रेमवर्क के अंदर क्या अभी फॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हम उससे बाहर हैं, और बाहर हैं तो कितना बाहर है। डेफिनेटली ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। जो जो चीजें आपको पता हो इन्फ्लेशन से रिलेटेड, फिट फ्रेमवर्क से रिलेटेड, मुझे डेफिनेटली डेटा वाइज आप कमेंट सेक्शन में शेयर करके बताएंगे कि एट प्रेजेंट इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, राइट, और क्या वो हमारा फिट फ्रेमवर्क के अंदर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड इन्फ्लेशन इज गोइंग अप और इन्फ्लेशन इज गोइंग डाउन एज ऑफ नाउ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट गाइस। तो ये वीडियो था आपके इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन इज नॉट जस्ट अ जनरल नंबर, इट्स अ सेंट्रल वेरिएबल अराउंड विच ऑल द आरबीआई रिलेटेड पॉलिसीज आर revolving, right? So you need to understand causes of inflation, measurement, RBI framework related to inflation. सही है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ बेसिक सीरीज के अंदर हम एक एफर्ट करते हैं कि आपको बेस समझा पाएं, और डेफिनेटली सो मेनी एडवांस वीडियोज आर ऑल्सो देयर इन द यूट्यूब चैनल ऑफ हॉलीवुड। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डेफिनेटली आपको कभी मुझसे कनेक्ट करना है, तो इफ यू टाइप CA Pratik Finance on the Telegram, you will get my Telegram group. Okay, thank you so much. Bye bye. Take care.